Good morning, one and all. I, Dr. Dana Rathore, along with my co-coordinator, welcome our guest speaker for the day, Mr. Kandab Patel, and all the panelists and participants for today's webinar on content writing that can be a part of career building. Today we have with us Mr. Kandab Patel, founder and content chief at Granth Creations Private Limited. Mr. Kandar Patel started his journey by establishing one of the top branding agency of Ahmedabad, Granth Creation Private Limited. Winner of Limca Book Records and India Book of Records, and now a recurrent TEDx, Mr. Kandar is a well-known content writer having the command of over many languages, where he was working as a project strategist in a manufacturing giant, but his passion towards writing brought him to the field of literature. At that time, he received an offer for the post of project executive from a 100-year-old institute named Navjeevan Trust at the age of 22. Long story short, he is more popularly known as the Content Man. Now, before I hand over the session to Mr. Kandar, I would like to request our head of the department, Dr. Monica Suri, to give away the opening remarks. Ma'am, over to you. Thank you, Dharna. Thank you so much. So, for those participants who have joined us for the first time and are not much aware of Oro University, and for Mr. Our speaker also, I'll be giving a very brief introduction of Oro University, and then I'll be taking few my opening remarks with respect to the topic, which is actually my hardcore area of interest as a marketing professional and marketing faculty. So, Oro University, it was established in the year 2011 under Gujarat Private University State Act 1956 and under Section 2F and 22C of UGC Act 2003. And it started with 7 schools, and the School of IT and Business are run who were since the time of establishment, along with other schools like Hospitality, Journalism, Mass Communication, School of Liberal Arts and Human Sciences, School of Law, and School of Design, Fashion Technology. So all these schools are existing presently. But from this academic year, we're also coming up with School of Sciences. And you all know that Oro University's philosophy is completely aligned to Shri Aurobindo and Mother's teaching learning philosophy of integral approach to learning and management, which Oro University actually talks about in its vision for the holistic development of its students in physical, mental, vital, and spiritual domains of their knowledge, growth, and progressive development. So along with that, Oro University has an international presence in the area of various endeavors, like we have visibility across the country, across nation, and across the world in terms of our collaborations with foreign universities, and also very active participation with the industry in our curriculum development, in designing of our content, in getting the advice as advisory board members from the industry. So it is completely focused on holistic development with respect to very experiential and practical approach to learning. And this is what briefly Oro stands for. So coming to my opening remarks for this particular topic on content writing as a part of career. So I think I'll not be wrong in my saying if I say that I feel that content is a living entity. I don't find content as a dead entity, because content is very much living entity, and this has been validated at the time of COVID-19 pandemic, when we all are living with the laptops, living with the content, living with the web throughout, and we wake up with the content and we sleep with the content. This is what I feel since last 2 or 3 months span of time, because we are aggressively practicing how to be more techno savvy and how to actually make the most out of this particular content as faculty or as maybe practitioners who are having competencies in various domains of knowledge. So when I say that content is a living entity, at the same time, I feel that content has an identity also, because that has been proved. It has identity. That's why you've named yourself as Content Man, because that is the first step to content writing, because you need a proper identity so that people should recognize you, what you are. And obviously when you have identity, you need a personality. Fine. So identity is fine, that you're visible, you are there, you exist.
But along with that, your personality has to be there. So we may think that content, how can content have a personality? But yes, content has a personality because it lives, it breathes, it actually, act. So that's why it is a personality. So whatever acts, whatever respond has a personality. This is what I believe in. And the third important point is when it has identity and personality, it has a good attitude also. So obviously we say that brand attitude. So content also has an attitude, right? Will not be wrong in saying that we used to say that customer is the king. But I equally think that content is also the king. If you will not make the king happy, if you will not groom the king, if you will not follow the king, I think it will actually be deteriorating our reputation, our image, online, offline, wherever you go. So I personally feel that content has an attitude. And if it has identity, personality, and attitude, surely it will have some ego. Because content ego is very important, because we are going to compete now, not only offline, but online. So when you compete online, you need an ego to win. You need an ego to be number one in the race. So that's why you might have seen that Silicon Valley has come up with many spiritual, contextual artificial intelligence kind of softwares like Mira. So Mira is nothing but a virtual salesman who is guiding you, facilitating your shopping experience, navigating you for other aspects of it. So I feel that ego is important to gain competitive edge. So content want to, they need to gain the competitive edge. That's why I'm saying that it has ego. And last but not the least is sustainability. And sustainability will only come with updations, everyday updation of content, because we are wrong in our saying that we'll update our CV after 1 year. I'm just talking from that point of view. We'll update the content after 6 months. That time is gone. Every day your content needs some innovation. Whether you just change one animation, doesn't matter, but it should look different and new every day. Once you wake up next day and as a customer you open the website, you should have a wow factor. It was not there yesterday, but yes, I can see it today. So I personally feel that with these points which I shared, that brand has identity, personality, attitude, ego, and sustainability. I made these points in last 2 or 3 minutes time when I was just introspecting about the content writing. So I think with this, I hand over the session to the coordinators, and I'm equally keen to learn because I've already kept my notepad ready. And I know I'll have great learning experience from your session, and I'll be able to incorporate as a marketing faculty in all my teaching learning processes. So thank you to the organizing team, to all my dear colleagues from School of IT and School of Business for inviting me here for opening remarks and giving me an opportunity to learn from you all. Thank you. It's over to you. Yeah. Before we get into the thing, I would just like to say that Kandar is being Indian and conducting this in India. He prefers to talk in Hindi. Yeah. So he knows many languages, but still he wants to be more of in Hindi as compared to any other language. I'll add on one more thing. Language is not a bar when it comes to content, because it breathes, it has emotions. So no matter whatever language you use, but it should reach to the people. The message must reach to the people. That's more important. So we are equally keen to learn, and we all know Hindi, English, Gujarati, all languages. So I'm sure it will not be a hindrance for each one of us as participants. Please go ahead, Anshu. Yeah. Now I would request Dr. Papri to introduce School of IT in very brief words, and after that we'll be handing over the session directly to Kandar without making him wait for much time. I think she's mute. Papri ma'am, unmute your mic. Hello, hello, Mr. Kandar. Good afternoon. This is Dr. Papri. So, I'm from, my background is IT, information technology. So, I'd like to map the content management, content writer with the information technology. So, like content writer, it uses various formatting tools like CSS, HTML, JavaScript, and all. So that is required. So from School of IT point of view, content writing is as important as your software management, your programming and all.
Okay, so Mr. Kanda, we welcome you to Oro University. Oro University School of IT was established in 2012, and now we have programs, UG programs like BSc IT, integrated MSc IT. We have 2 master's program of MSc IT and MSc in artificial intelligence, where we have state-of-the-art technology lab and we have a language lab also along with that. So content writing is a part of this IT's program, because the when you develop something, when you write blogs, okay, so content writing is as important as to improve your business also. Okay, so we welcome you, and the IT students will be benefited from your webinar, from your talk. Thank you. Hello. Welcome to all of you. एक स्ट्रेंज थिंग मैं आपको बताऊं. सबसे पहले जब बच्चा बॉर्न होता है, मतलब जन्म लेता है, और उसके बाद हम उसको क्या सिखाते हैं? हम उसको धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं. फिर स्कूल में या फिर नर्सरी में जब उसको भेजते हैं तो उससे पहले हम उसको लिखना सिखाते हैं, नंबर्स, ये राइट, क ख ग, राइट. क्या होता है ये सब? कंटेंट के बेसिक्स हैं ये. जो बेसिक्स हम सीखते हैं ना, उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है आज. ये सबसे बड़ी स्ट्रेंज थिंग है कि कंटेंट राइटिंग का कहीं पे भी सर्टिफिकेशन नहीं है. कंटेंट राइटिंग की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां से आप कोर्स कर सके. डिजाइन की यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज हैं, सीए की यूनिवर्सिटीज है, सब आप सीख सकते हैं. कंटेंट राइटिंग इतना बड़ा फील्ड होके भी, बेसिक होके भी, उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है. सो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थिंग है. उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है. सो जनरली हम किसी भी कंटेंट राइटर को सुनते हैं या पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो कोई भी आईटी प्रोफेशनल होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई सीए होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो वो बोलेगा कि मेरा पैशन जो है वो मैं कंटेंट लिखना है. मैं भले ही जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ मुझे लिखना चाहता हूँ, राइट. मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपनी बात. मैं फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखता हूँ. मैं जब भी मिलता हूँ किसी से तो लोग ये बात करते हैं कि मैं किसी से शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. जैसे कि 2 दिन पहले ही सूरत में 1 साल पहले जो बच्चे वो पूरे एक वारदात में जल के, मतलब उसके जो दुर्घटना घटी थी, तक्षशिला केस वाला, वो आज भी उतने ही भावुक है, उतने ही दुखी है कि आज भी मैं जब देखा तो उसी इंटेंसिटी के साथ लोग अपनी बातें शेयर कर रहे थे. सो ये बात कहीं ना कहीं कंटेंट ऐसी चीज है कि सामने वाले के जो थॉट्स है, सामने वाले की जो थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज कर सकता है. हमेशा हम मानते हैं, हमेशा हम जानते हैं, हमेशा समझते भी हैं कि कंटेंट ऐसी चीज है कि जहां आप अपना करियर बिल्डिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऐसी भी चीज है जैसे कि आप प्रोफेसर हैं, आप जब भी बच्चों को सिखाते हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते, कुछ संस्कार भी सिखाते हैं, कुछ 2 गुण भी सिखाते हैं कि आगे जाके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें इस तरीके से जॉब करनी है, इस तरीके से तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है, राइट. सो ये चीज जो है ना, वो बहुत ही बैलेंस्ड है. अपने इमोशंस को कैसे लेके आगे बढ़ना है और अपनी बात को कैसे कह देना है, राइट. इसी से पूरी दुनिया, पूरा का पूरा संसार और पूरे के पूरे हम चल रहे हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं कंटेंट से. सुबह उठते ही मोबाइल में किसी का व्हाट्सएप देख लिया, किसी का फेसबुक का पोस्ट पढ़ लिया, कोई अच्छा लिख रहा है तो उसको अप्रिशिएट कर दिया, किसी यूट्यूब का वीडियो देख लिया तो उसको सब्सक्राइब कर लिया. क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हमें पसंद है वो चीज, राइट. सो आज का टॉपिक हमारा यही है. मैं कंदर, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ. अहमदाबाद में ग्रंथ क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और हम पूरे के पूरे कंटेंट सेंट्रिक ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चला रहे हैं. सो मुझे अच्छा लगेगा आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना. सो जैसे वो चक दे इंडिया में वो डायलॉग है ना, शाहरुख खान बोलता है कि आपके पास इतने मिनट है, वैसे ही हमारे पास आधा घंटा है, पौना घंटा है,
और उसके अंदर हम जितना भी मैं आपको सर्व कर पाऊँ, जितना भी दे पाऊँ, उतना मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम आपको दे पाऊँ। इस पूरे के पूरे सेमिनार की ब्रॉडर लाइन ये है कि कंटेंट को लिख तो लिया, कंटेंट को लिखना तो जान लिया, लेकिन अभी उसमें से उसका कमर्शियल एस्पेक्ट, कमर्शियल वैल्यू कैसे हम डेवलप करें, उसकी कैसे कंटेंट का मार्केटिंग करें अपना, और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। आप में से कई सारे लोग लिखते होंगे, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते होंगे, कॉलेज में से छोटे छोटे फनी जिप्स बनाते होंगे, तो उसको कैसे शेयर करते हैं, उसकी कमर्शियल वैल्यू कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, राइट। ओके, सो आवर टॉपिक इज हाउ कंटेंट राइटिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ करियर बिल्डिंग। ओके, सो सेशन की आज आउटलाइन हमारी ये कुछ रहेगी। गब्बर की असली पसंद क्या है मैं बताता हूँ। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के मिथ्स क्या है। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, हिस्ट्री ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, इंडियन वे ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट एंड मार्केटिंग फनल, राइट। सो शायद ये स्क्रीन आपके साथ शेयर करी है मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ चीज से आपको शुरुआत करना चाहूंगा। शोले आपने सबने देखी होगी, शोले के आइकॉनिक सीन्स आपको पसंद होंगे, आइकॉनिक फिल्म। और उस वक्त जब ये पूरा का पूरा कैंपेन हुआ था, तो विलन के तौर पे सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड के बनने वाले जो पर्सन थे वो अमजद खान थे। उस एड के लिए उनको 40,000 रुपीज मिले थे, और राजेश खन्ना तब सेलिब्रिटी फेस थे जो एंडोर्सिंग कर रहे थे बड़ी बड़ी ब्रांड्स को, उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन शोले हिट होने के बाद सबसे पहली ब्रांड एंडोर्समेंट की गई किसी कंपनी द्वारा, तो वो थी अमजद खान। और ग्लूकोज डी बिस्किट्स जो आते थे ब्रिटानिया के, उसको गब्बर की असली पसंद के नाम से बच्चों को दिया गया। अभी आपने सुना होगा कि कंटेंट यहाँ पे कैसे प्ले हुआ। आपने सुना होगा कि शोले में एक अच्छा और बहुत ही फेमस डायलॉग है, जब बच्चा माँ कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, जब दूर दूर तक। तो ये पूरी जो लाइन है ना, उसी का उन्होंने गब्बर की असली पसंद, मतलब बच्चों को जिससे डराया जाता था उसी चीज को उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि गब्बर की असली पसंद। बच्चों को जो डायलॉग बच्चों को डराने के लिए फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, वही डायलॉग को ट्विक करके बच्चों की असली पसंद, गब्बर की असली पसंद ब्रिटानिया बिस्किट के नाम से लाया गया। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल था तब, कि जब शायद किसी को पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से कंटेंट को बेचते हैं, किस प्रकार को कंटेंट का कमर्शियल वैल्यू डेवलप करते हैं। ये पूरा सीन जो था, वो कितने आदमी थे, जो फेमस आइकॉनिक सीन है, तब शूट किया गया था, और 60 सेकंड की एड बनी थी, जो थिएटर, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, मैगजीन्स, आउट ऑफ होम, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, सभी जगह पे ये सब यूज होता है, और सबसे लंबा चलने वाला ये एड बना था। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ आपको ना। व्हाट्स द कंटेंट मार्केटिंग। आपने कंटेंट लिख तो लिया, अभी उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसमें करियर कैसे बनाएंगे, अपनी बात को कैसे अच्छी तरीके से कहेंगे। सो ब्रांड टेलिंग स्टोरीज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। सो ब्रांड्स हमेशा क्या करती है, ब्रांड्स हमेशा स्टोरी कहती है। जैसे कि आप 30 सेकंड्स की आप जब एड टीवी में देखते हैं, जब मैच चल रहे हो टीवी पे एड देखते हैं, तो वो आप 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कुछ ना कुछ बातें कह जाते हैं जो आपको अच्छी लग जाती है, राइट। जैसे MDH मसाला की ऐड आ गई तो आपको पता है, पतंजलि की ऐड आ गई तो आपको पता है कि क्या वो बोलेगा, क्या वो अभी सीन आएगा, क्या किस प्रकार से वो अभी बात करेगा, उसकी टैगलाइन क्या है, राइट। सो ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है हम समझते हैं। जैसे कंटेंट मार्केटिंग के मिथ्स है कि कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ कुछ बिजनेसेस के लिए है, हम कुछ ही, मतलब हमें लिखना आता है तो भाई मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, मुझे जो पसंद था वो मैंने लिख दिया, मेरे तो अंदर से आता है, राइट। फिर मैंने कहीं पे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे को जितना अंदर से आता है, मैं कविताएं लिखता हूँ, फिर नवल कथाएं लिखता हूँ, नॉवेल्स लिखता हूँ, नवलिका लिखता हूँ, छोटी छोटी कहानियां लिखता हूँ, लेकिन उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, हमने कभी वो नहीं स्टडी किया। तो हमने हमेशा ये देखा कि किस प्रकार से हम किसी बात को कहते हैं। हमेशा हमें
हम एक चीज करते हैं कि हम हमेशा अपनी बात को कहने के लिए स्टोरी टेलिंग में जाना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी भी हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं तो, या फिर आप प्रोफेसर्स हैं, या फिर आप कोई भी प्रोफेशन में है, जब भी आपको लिखना है, जब भी आपको कुछ कहना है, तो आप किस प्रकार से कहेंगे, उसको हमेशा स्टोरीफाई करेंगे। किस प्रकार, जैसे मैं यहाँ गया था, वैसा नहीं, मैं यहाँ गया था ये बात कहने के लिए मैं पूरी की पूरी स्टोरी बिल्ड करूंगा। जैसे मुझे यहाँ पर क्यों जाना था, मैं वहां के लिए जाने के लिए क्यों तैयार हुआ, मेरा वहां पे क्या काम था, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, रास्ते में मेरे को कौन मिला, क्यों मिला, ये सब चीजें जो आउटलाइंस है ना, वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है, जिससे लोग कनेक्ट होते हैं, राइट। तो बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, ह्यूमंस हैव टोल्ड स्टोरीज फॉर द लॉन्ग एज दे कुड स्पीक, our attention will always go to those who tell great stories। हमेशा जब अपनी नानी या दादी जब कहानियां सुनाती थी, या फिर हमारे मम्मी पापा जब भी कहानी सुनाते थे, या फिर हमारे बड़े भाई या बड़े बहन, या फिर जब भी हम वेकेशन में अपने मामा के घर जाते तो वहां जब भी हम कहानियां किसी से सुनते थे तो वो सबसे अच्छी बात होती थी, और वो कहानियां आज तक हमें याद है। उसका रीजन एक ही है कि कहानियां हमेशा याद रहती है, कहानियां हमेशा याद बनी रहने के लिए बनती है। और वो कहानी इतनी डेप्थ में कैसे बने, और वो कहानी सिर्फ कहानी के तौर पे ना रहे, और वो बिजनेस के लिए कैसे कमर्शियल एस्पेक्ट में उसका कमर्शियल वैल्यू निकले, राइट। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी किस प्रकार से ये, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि लोगों ने कंटेंट बना लिया, उसके बाद उसको किस प्रकार से बेचा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि जीआई जो, आपने सीरीज का नाम तो सुना ही होगा सबने, राइट। जीआई जो रियल अमेरिकन हीरो करके पूरा का पूरा एक कार्टून सीरीज, अपना सुपर हीरो सीरीज आता था। तो ये सीरीज को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि 1982 में पूरा का पूरा स्टार वॉर्स टॉय कंपनी जो थी वो अपने टॉयज बनाती थी, डिफरेंट टाइप के सुपर हीरोज के टॉयज। उसको बेचने के लिए इन लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग का यूज किया। जैसे कि उन लोगों ने एक अच्छा सा मैगजीन निकाला, राइट। वो मैगजीन इतना बिका कि वो कॉमिक बुक जो है वो हर 3 में से 2 घर में होती थी, और 3 में से 2 घर में जो बच्चे होते थे उनके पास जीआई जो के टॉयज होते थे। और 7 साल के बाद मार्वल का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल था, राइट। तो ये कंटेंट मार्केटिंग की पावर है, कंटेंट की मार्केटिंग है कि आपने किस प्रकार से चीज को प्रेजेंट किया। जैसे कि कॉमिक बुक्स जो आती थी वो हमको पसंद थी पढ़ना। क्यों पसंद थी? क्योंकि उसमें उस अच्छी तरीके से इलस्ट्रेशंस दिए होते थे, अच्छे तरीके से उसमें पूरी स्टोरी टेलिंग दी होती थी, हमें विजुअलाइज कराया जाता था कि भाई हाँ ये कुछ सीन बन रहा है, ये कुछ बात बन रही है, ये कुछ स्टोरीज है। तो उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ जाती थी, लोगों के सामने ये स्टोरियां पहुंचती थी। और ये मैगजीन या अपनी चंपक आपने शायद पढ़ा होगा, राइट, या अपने बचपन में अपनी सफारी पढ़ी होगी। क्यों हमको पता था? क्योंकि साइंस की बात भी हमको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में सुनाई जाती थी, राइट। हाँ, ओके। सो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या एक्चुअली, कि अपनी ब्रांड के लिए राइट इमोशन चूज करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आईटी कंपनी के लिए जब आप लिखते हैं, जैसे कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं और आपको बोला गया है कि यू हैव टू राइट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू हैव टू राइट ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और यू हैव टू राइट ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, राइट। तो आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि भाई मुझे क्या लिखना है, ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं वो किसको काम आएगी, मेरा कंज्यूमर मतलब मेरा ऑडियंस क्या है, मेरा कस्टमर कौन है, मुझे किसके लिए पिच करना है, राइट। सो जब भी मैं ये सब लिखने के लिए ट्राई करता हूं या फिर मैं लिखता हूं, तब मुझे हमेशा ध्यान में ये रखना है कि चूज द राइट इमोशन फॉर द ऑडियंस। मेरा ऑडियंस कौन है, मेरी कंपनी कौन है, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, और मैं कौन सी कमर्शियल कंपनी के लिए लिख रहा हूँ, राइट। उसकी सर्विस उसके कंज्यूमर को मेरे कंटेंट से कैसे काम लगेगी। ये सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले लिखने से पहले हम ये चूज कर लें कि भाई ये कैसे मुझे लिखना है। तो choose the right emotion. The blend of emotional and sellable content makes successful brands. I have once read somewhere that emotions travel from person to person like a virus. Not COVID, but it's a
मतलब इमोशंस क्या है, जैसे आपको अच्छी लगी कोई चीज तो आप क्या करते हैं, हमेशा उसको शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, राइट। आपने क्या शेयर किया, वो कहानी शेयर की, वो स्टोरी शेयर की, वो एक्सप्रेशन शेयर किया, वो इमोशन शेयर किया जो आपको पसंद आया, जो आपको अच्छा लगा। वैसे ही ये राइट इमोशन के साथ लिखी गई बात जब अपने कंज्यूमर तक पहुंचती है, वो कंज्यूमर जब वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए मजबूर होता है या लेता है, तो आपका लिखा हुआ जो चीज है वो सार्थक है, राइट। सो ये कंटेंट से हम डिफरेंस पैदा कर सकते हैं कि कस्टमर जो है वो क्या खरीदेगा और किस प्रकार से खरीदेगा हमारी चीज। सो नाउ आई थिंक यू आर थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा। तो ये किस प्रकार से कंटेंट मार्केटिंग है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, प्लस टारगेट ऑडियंस, प्लस हाई क्वालिटी कंटेंट एंड प्लस कंसिस्टेंट बेसिस। जैसे आज आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं या फिर अपनी यूनिवर्सिटी कोई प्लान करती है कि भाई हमें कंटेंट लिखना है और ये कंटेंट जो है वो बच्चों की स्टडी के अवेयरनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, पढ़ाई के अवेयरनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ टिप्स के रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ आपको इंटरव्यू के टिप्स देने हैं कि भाई इंटरव्यू किस प्रकार से क्रैक करना है, या फिर आपको किस प्रकार से अटायर में पेश होना है, आपको किस प्रकार से कंपनी में आगे जाके काम करना है, आपको ये सब चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें होती है। लेकिन उससे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, आप में कम्युनिटी बनाना, टारगेट ऑडियंस को गैदर करना और हाई क्वालिटी कंटेंट, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कंटेंट कि जो आपको जो सामने वाले ऑडियंस को सुनने में मजा आए, देखने में मजा आए, उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे देना। दिस इज द कंटेंट मार्केटिंग। ओके, सो हमें हमेशा लगता है कि हमें हिस्ट्री की बातें पसंद आती है हमेशा। तो जॉन डियर शायद आपको पता हो कि वो ट्रक बनाती थी और जब उन्होंने शुरुआत की थी कंपनी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की, तो वो सबसे पहले एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। क्या किया, किस प्रकार से लिखा, 1895 सबसे पहला कंटेंट मार्केटिंग का प्रयोग किया गया फ्यूरो नाम के मैगजीन में। जो फ्यूरो नाम का मैगजीन था वो एक्चुअली अमेरिकन फार्मर्स के लिए एक जर्नल था, कि जिससे किसान को पता लगता था कि मुझे किस प्रकार से फार्मिंग करनी है, मुझे किस प्रकार से कोई लेट्स से कोई सीड को लेना है, मुझे कौन सी प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करना है, मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स लगेंगे जिससे मैं मोस्ट और मोर एफिशिएंट फार्मिंग कर सकता हूँ, राइट। तो उन्होंने ये पूरे के पूरे 125 साल पहले जब शुरू किया था मैगजीन, आज भी चल रहा है। और आज उसकी सिचुएशन ये है, आप देखिए कि वह जर्नल धीरे धीरे किसानों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना फैला कि आज उसके 1.5 मिलियन सर्कुलेशन है, 40 कंट्रीज में जा रहा है और 12 लैंग्वेज में हो जा रहा है। सो दिस इज ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट कंटेंट मार्केटिंग इम्प्लीमेंट, राइट। सो ये था पूरा इंटरनेट एरा के पहले। दूसरे बात, हम सब जानते हैं कि भाई शायद लेडीज जो है वो घर में अच्छी सी जब रेसिपीज बनाती हैं तो वो सिर्फ एप्रिसिएशन तक ही सीमित रहता है कि भाई मैंने कैसा बनाया जी, अच्छा बना कि नहीं, वो इतने तक ही सीमित रहता है। फिर अगर अच्छा बना है तो उसको मैं किसी को दिखाऊं, वो अच्छा बना है तो मैं किसी के साथ शेयर करूं, वो अच्छा बना है तो मैं उसको दूसरे जो लेडीज हैं या फिर दूसरे जो लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाऊं कि जिनको ये रेसिपी मिलेगी तो उनको अच्छा लगेगा, वो लोग भी अपने घर पे ट्राई करेंगे। वो हम कभी नहीं सोचते। तो जो काम हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा और प्रयत्न करेंगे तो शायद हम जो कर रहे हैं वो चीज लोग देख पाएंगे। शायद आपको पता होगा कि हम जनरली लेडीज जनरली मोबाइल में जब भी वर्किंग वुमेन्स जो है वो फोन में ज्यादा से ज्यादा जो रेसिपीज के वीडियोस हैं वो सबसे ज्यादा देखती है और वो चैनल्स की सब्सक्रिप्शन और लाइक्स और ये सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि एक फीड में एक बार आपने वो देख लिया फिर वो सिस्टम भी आपको वही दिखाती है कि भाई आपको वही फूड के रिगार्डिंग रेसिपीज के रिगार्डिंग वीडियोस पसंद है, राइट। सो 1904 में जेलो करके एक वर्किंग वुमन थी, उसने बहुत ही सस्ते में, मतलब कि कुछ ज्यादा चीजें आपको नहीं यूज करनी है और
आपके घर में जो भी चीज है उससे क्या अच्छी रेसिपीज बन सकती है, वो रेसिपीज की एक छोटी सी बुक निकाली और वो बुक जो है वो डोर टू डोर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। वो बुक इतनी फेमस हुई कि सिर्फ 2 साल में वो बुक का जो डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट था वो $1 मिलियन से प्लस था 1904 से लेकर 1906 के बीच में। तो जब कोई साधन नहीं थे, कोई एक्सप्रेशन के मीडियम्स नहीं थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तब अगर कोई ये कर सकता है तो आज हमारे पास सब कुछ है। हम यूनिक इनोवेटिव तरीके से अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके मार्केट में हम क्यों नहीं रख सकते, राइट? और अगर वो कंटेंट अच्छी तरीके से हम रख रहे हैं तो हमें भी पता है कि वो जो भी एप्रिसिएशन मिलेगा उससे हमें कुछ ना कुछ कमर्शियल बेनिफिट तो मिलने वाला ही है, लेकिन हमारा जो ब्रांड बिल्डिंग है वो भी साथ में होगा। तो ये चीज जो है हमें सिर्फ क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन करना है अपनी चीज का। हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसको लिखिए, हम जो भी बात कहना चाहते हैं उसको लिख दीजिए, हम जो भी कुछ बना रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। हम देखते हैं आज के दौर में कि भाई सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज आ रही है कि लोग इतनी क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे हैं जहाँ पे वर्किंग वुमन जो है वो पूरे घर में, लॉकडाउन में उन्होंने पूरे घर में किस प्रकार से काम किया, राइट? किस प्रकार से छोटी छोटी घर का कोना एक चीज करके उन्होंने शेयर किया। तो एक तो मैंने कहीं पे ऐसा भी देखा था कि भाई पूरे घर को उन्होंने इस एंगल से प्रेजेंट किया कि एक छोटा सा एक रूम और एक किचन वाला जो उनका मकान था, जो घर था, उनके कुछ 80+ इमेजेस उन्होंने ऐसे निकाले कि आप बोल भी नहीं सकते कि वो एक दूसरे से मिले हुए हैं या फिर एक ही घर की इमेजेस है। अब आप नहीं बोल सकते, चैलेंज के साथ उन्होंने ये रखा। और तो ये सब चीजें हैं कि अपनी काम को, और उसके नीचे उन्होंने क्या कि हर एक इमेज की डिस्क्रिप्शन, अच्छी सी कंटेंट कि ये कोना मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये घर का वो कोना मेरे लिए क्या मायने रखता है, वो लाइब्रेरी मेरे लिए क्या मायने रखती है, वो कंप्यूटर का वो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है, मेरा बेड है वो क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे घर में जो कोने में जो एक टेडी बेयर पड़ा हुआ है वो क्या मायने रखता है, राइट? तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ है वो आज कोई पब्लिशर ने सामने से उनको बोला कि वी आर गोइंग टू लॉन्च योर एक्टिविटी इन बुक फॉर्म, राइट? हम आपकी बुक फोटो बुक आपकी जो है वो लॉन्च करेंगे आफ्टर द लॉकडाउन। सो हम अपने समय का, अपनी इमोशंस का, अपने एक्सप्रेशंस का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आपने PNG का नाम तो सुना ही होगा शायद आपको, लेकिन वो नहीं पता होगा कि हम जो आप सोप ओपेरा जो बोलते हैं या फिर डेली सोप जो बोलते हैं, जब सीरियल को हम बोलते हैं डेली सोप्स, राइट? हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि PNG ने सबसे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जब सबसे पहला कंपनी ने रेडियो एड निकाला था तो वो एड में उन्होंने डजन ऑक्सीडोल करके जो सोप पाउडर था उनकी ब्रांड्स के छोटे छोटे फिलर्स आते थे सॉन्ग्स के बीच में, राइट? तो ये आज उसकी वैल्यू क्या हुई मैं आपको बताऊं। वो वैल्यू क्या हुई, जो सोप पाउडर के लिए एड बनी थी, रेडियो एड, वो आज हम सोप ओपेरा के नाम से उसको जानते हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई हम क्या इनोवेटिव तरीके से करते हैं और उसकी वैल्यू हम कहाँ तक ले जाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, राइट? उसके बाद तो 1950s में मैगजीन रिवॉल्यूशन हो गया, टेलीविजन धीरे धीरे आना शुरू हुए, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर टीवी आए, फिर GI जो कॉमिक आ गई हमारी, राइट? फिर फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब WWW सन फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने निकाला, राइट? कि जब इंटरनेट की दुनिया धीरे धीरे वेब की दुनिया, जो मायाजाल है वेब का, वो शुरू हुआ। उसके बाद कम्युनिकेशन के मीडियम क्या क्या बनते चले गए, कम्युनिकेशन के और कंटेंट के मीडियम क्या थे। कंटेंट मेरे को किसी को शेयर करना है तो मैं फैक्स मशीन से शेयर करने लगा, फिर मैं जेरॉक्स करने लगा उसका, राइट? फिर उसका मैसेंजर, AOL इंस्टेंट मैसेंजर आ गया, उससे शेयर करने लगा। फिर 2001 से सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग ऑफिशियल तरीके से पिक्चर में आया। नाम हम जानते हैं कि सोशल मीडिया इज वर्ल्ड,
नाउ एक दुनिया है, अलग दुनिया है। और 3 साल और 3 ग्रेटेस्ट मीडियम, जैसे कि 2004 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब और 2006 में ट्विटर। सो ये तीनों मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग के चैनल्स हमेशा से रहे। नाउ 2009 में व्हाट्सएप, 2010 में इंस्टाग्राम, 2011 में वीचैट और स्नैपचैट। स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल्स टू रीच यंग कंज्यूमर सेगमेंट। अभी मैं जब भी कुछ लिखने के लिए ट्राई करता हूँ तब मैं हमेशा ये सब चीजें ध्यान में रखूंगा कि मेरा कंज्यूमर कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, मेरी कंपनी कौन है, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, और मैं अगर लिख भी रहा हूँ तो उस तक कैसे मेरी बात पहुंचे। नाउ ब्लंडर कम्स, टिकटॉक पब्लिकली लॉन्च्ड इन 2016। अभी तो हम देख रहे हैं कि 1.3 या 1.2 समथिंग हमने रेटिंग्स कर दी है। एंड देन जियो कम्स, राइट। और उसके बाद तो पूरी कंटेंट की दुनिया ही बदल गई कि भाई हम ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्व करने लगे, हम अलग अलग मूवीज सर्व करने लगे, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्व करने लगे, यूट्यूब सर्व करने लगे, और हमने बहुत सारा कंटेंट जो है वहां से ढूंढ निकाला, राइट। क्या हम जानते हैं कि ये वर्डप्रेस जो है वो वर्ल्ड का 70 मिलियन पोस्ट पर मंथ उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। 35% ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट को पावर कर रहा है, और 60% कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो वर्डप्रेस शेयर कर रहा है, राइट। और 120 प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल भी है, राइट। तो ये सब चीज है कि मल्टीपल आज ऑनलाइन कंटेंट चैनल्स हैं, क्रिएटिव ऑफलाइन कंटेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जितना भी कंटेंट लिख सकिए उतना लिखिए। आपके कंटेंट की वैल्यू मार्केट में बहुत बड़ी है। आप जो भी अच्छा लिखेंगे जिससे किसी भी कस्टमर को फायदा होगा, या फिर किसी भी कस्टमर अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बेचने के लिए उसके मूल में, उसके रूट में जब कंटेंट होगा तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, राइट। ये है कुछ सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह जहां से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जैसे लिंक्डइन मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के जहां पे आप अपनी बात रखें। जो भी आपके कंपनीज के सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, वो वहां पे हैं। तो आप कुछ ऐसा, आप जो भी फील्ड में हैं, आपको जो भी लिखना पसंद है वहां पे शेयर करना आप शुरू करें। जो प्रोफेशनल कंटेंट है, जो इंडस्ट्री सेगमेंट में कंटेंट आता है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आप आईटी ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, आप प्रोडक्शन ले लीजिए, आप लेट्स से ज्वेलरी ले लीजिए, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, राइट। लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके का जो कंटेंट है वो आप अगर बिल्ड करना शुरू कर देंगे, राइट, तो वो आप लोगों की नजर में बखूबी आ जाएंगे। तो कंटेंट मार्केटिंग में या कंटेंट राइटिंग में करियर बनाना आज के लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसको प्रेजेंट करने के मीडियम्स बहुत सारे हैं, राइट। आप एक बार ये सभी ब्रांड्स के कैंपेन्स देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कंटेंट क्या कमाल कर सकता है, और कंटेंट से कंपनी को कितना और कैसे लाभ हो सकता है, और कंटेंट मार्केटिंग से कंपनियां कैसे अपना कारोबार चला रही हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से चला रही है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग काम कैसे करता है। कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई सबसे अच्छी पोस्ट है, सबसे अच्छी असम पोस्ट आपने कहीं पे देख ली, और आपने उसको किसी के साथ शेयर किया, राइट। और उसके बाद शेयर किया तो सामने वाले ने क्या बोला, अरे हाँ ये ब्लॉग तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, अरे हाँ ये तो मैंने कहीं पे देखा था। यस, ये जब चीज होती है, ये जब चीज बात आती है, तब आपको समझ लेना कि आप जो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो कंटेंट लिखा है वो फेमस हुआ, राइट। तो इसी प्रकार से कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स करता है कि एक ने बोला, दूसरे ने अप्रिशिएट किया, वो तीसरे ने शेयर किया, और चौथे के पास पहुंचा, राइट। तो ये पूरा का पूरा हाँ, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि भाई कोई AR/VR के लिए आप लिख रहे हैं, या फिर कुछ लेट्स से कि ओके, सो हम लिख सकते हैं कि जैसे IT कंपनीज के लिए हमने लिखा, राइट, कि AR/VR इन स्मार्ट सिटीज करके। तो हमने क्या लिखा, हमने किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसमें SEO रिलेटेड वर्ड्स कैसे होने चाहिए, टारगेटेड एरियाज कौन से हैं, वो सब जब वर्कआउट करके लिखेंगे, और जब हमारा लिंक जो है वो फर्स्ट पेज पे या फिर जब आगे आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ
कि भाई उससे क्लाइंट को भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। क्लाइंट को इस प्रकार से फायदा है कि क्लाइंट को वहां से क्वेरीज मिलेगी, राइट, कि भाई अपनी वेबसाइट के लिए आपने कुछ लिखवाया, आपने ब्रोशर्स के लिए आपने कुछ लिखवाया, आपने केस स्टडीज लिखवाए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ उनको क्वेरीज भी मिल रही हैं, और दूसरी ओर से क्या हो रहा है कि भाई आपको दूसरा ब्लॉग लिखने के लिए कंपनी के पास से अप्रोच भी किया जा रहा है, राइट। उसके बाद मान लीजिए कि आपने किसी कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लिए लिख लिया, तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो कौन उसका एंड कंज्यूमर है, किस प्रकार से मैं उसको पिच कर सकता हूँ, तो ये सब चीजें हमें सबसे पहले लिखनी है। तो लिखने से पहले हमें किसके लिए लिखना है, तो वो सबसे पहले वायर फ्रेम बनाना बहुत ही जरूरी है कि भाई हम लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, राइट, कि जिससे वो सामने वाले को अपीलिंग लगे। आप सब ने ये कोरोना कमांडो के बारे में सुना होगा, शायद अभी पिछले महीने ये पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो हमने रन किया था, राइट। कॉन्सेप्ट यही था कि भाई कोरोना से जो भी हम अभी रूमर्स फैला रहे हैं वो बंद हो और एक अच्छी जानकारी मिले। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सर्टिफिकेट को शेयर करते हुए भी देखा होगा अपने सोशल मीडिया वगैरह पे। तो ये पूरा का पूरा जब कैंपेन चलाया गया, राइट, तो तब कंटेंट मार्केटिंग की जो ताकत है वो उसका अंदाजा लगा कि भाई लाख लोगों तक विदिन 1 और 2 वीक के अंदर पहुंच गई ये पूरी बात, राइट। और 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो है वो रजिस्टर भी हो गए कि भाई हाँ हम कोरोना कमांडो बनने के लिए तैयार हैं, राइट। तो ये कंटेंट की पावर है कि आप जितना अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में है, राइट, अब जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आप लिखना शुरू करें, राइट। और जैसे कि आप इंजीनियर है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिविल के लिए लिखना शुरू करते हैं, राइट। अगर आप लिख रहे हैं किसी और बोलते हैं कि किसी और फील्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप होटल मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए लिखना आप शुरू करेंगे, उसके लिए ब्लॉगिंग करना शुरू करेंगे, आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगे, कुछ अच्छी सी स्क्रिप्टिंग करना शुरू करेंगे, कुछ वीडियो के आइडियाज निकालना शुरू करेंगे, उसको प्रमोट कैसे किया जाए, मेरे कंटेंट थ्रू किसी भी चीज को मार्केट कैसे किया जाए, वो जब करना शुरू करेंगे तो आपको बखूबी आइडिया आ जाएगा कि मुझे अभी किस प्रकार से लिखना है। ओके, सो आई थिंक कि मेरी ओर से जितना भी था उतना मैक्सिमम मैंने कवर किया विद इन सम मिनट्स। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई अभी आपकी ओर से कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछे। यस कंदर, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। राइट। अंजलि शर्मा पूछ रही हैं, कैन वी राइट ओनली ऑन वन टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट मच ऑन द सेम टॉपिक, शी वांट्स टू नो व्हाट यू। हाँ, देखिए मैं 2 प्रकार के कंटेंट की बात करूंगा। एक टॉपिक है कि आप कमर्शियल कंटेंट लिख रहे हैं, और दूसरा टॉपिक है कि भाई आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं। जैसे अपने हिसाब से लिखना मतलब क्या, कि मेरे अंदर से आता है, मेरे को कुछ ऑब्जर्वेशन लिखना पसंद है, मैं कहीं पे घूमने गया तो मुझे वो लिखना पसंद है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो उसका कन्वर्जन कहाँ पे है वो नहीं पता हमें। हाँ, 5-7-10 लोगों को पता चलेगा, लेकिन वो चीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी लिखनी जो है, आपकी लिखावट जो है वो लोगों के सामने आएगी और उनको पता चलेगा कि भाई आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो फिर आप कमर्शियल कंटेंट राइटिंग भी धीरे धीरे सीख सकते हैं, राइट। जैसे कि वही आप जब घूमने जा रहे हैं तो वही कंटेंट को आप ट्रैवल कंपनी के लिए कैसे लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने आज कोई अच्छा सा गहना खरीदा और वो गहना खरीद कर आपने फेसबुक पर या कहीं पे इंस्टाग्राम पे अच्छा सा उसकी फोटो निकाल के रखी, वही चीज आप किसी ज्वेलर के लिए कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये हुई कमर्शियल कंटेंट राइटिंग, और ये हुई आपकी पर्सनल को जो आपको दिमाग में आ रहा है। तो आपको दोनों प्रकार से अलग अलग टॉपिक पे अगर लिखेंगे तो आपकी लेखनी जो है सबसे ज्यादा मजबूत भी होगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कौन से विषय में अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, राइट। Yes. Any other questions? She also wants to know about blogging and articles. Okay. So basically articles और blogging
देखने के लिए अगर हम देखने जाए तो ब्लॉग हम जनरली ब्रॉडर सेंस में ये बोलते हैं कि भाई कई लोग बोलते हैं ना कि मैं अपना ब्लॉग चला रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि किसी एक फिल्म स्टार का या फिर किसी शेफ का या फिर किसी कोई पर्सनालिटी का आपने ब्लॉग ले लिया, भाई ब्लॉग के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, राइट। तो ब्लॉग एक ब्रॉडर चीज है, जैसे कि मेरा ब्लॉग है contentman.in, राइट। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, राइट। तो ब्लॉगिंग करना इन द शॉर्ट कि किसी के लिए, किसी आईटी कंपनी के लिए, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, किसी बोलते हैं कि भाई हेल्थ केयर के लिए, किसी भी ट्रैवल टूरिज्म के लिए, एसेंशियल के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, जब भी ई कॉमर्स के लिए जब भी हम लिखते हैं उसके ब्लॉग सेक्शन के लिए लिखते हैं, जनरली उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग ब्रॉडर वे में, राइट। और उसके अंदर जो हम इंडिविजुअल आर्टिकल जो लिखते हैं, पीस ऑफ कंटेंट, राइट, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स, राइट। तो आर्टिकलशिप होती है, आपको अगर पता हो तो। आर्टिकल चीज है इंडिविजुअलिटी, और ब्रॉडर सेंस में उसको बोलते हैं हम ब्लॉग, या फिर और ब्लॉग के लिए जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। यस। Any other questions? Yes, we have more questions. Yes, please. How do we commercialize our content and whom to send? How do we identify our potential clients? Right. तो ये कैसी बात है कि जैसे एक ग्वाला है, ठीक है, या फिर कोई एक बिस्किट बना रहा है कोई कंपनी। अभी उसका टारगेट सेगमेंट क्या होगा? उसका टारगेट सेगमेंट होगा कि बच्चे। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, आ रहा है आवाज? नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। Yes, we can hear you. Okay, Yes, okay, sir. fine. Okay, so हमेशा हम जब लिखते हैं ना तो हमें अपना टारगेट ऑडियंस पता होता है। जैसे कि हम अगर टेक्निकल लिख रहे हैं तो टेक्निकल कंपनीज को कैसे अप्रोच किया जाए, राइट। जैसे कि आप आईटी फील्ड में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, या फिर आप मैनेजमेंट में हैं, तो आप अगर मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले भेजना है मैनेजमेंट रिलेटेड टीम, या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड आपके प्रोफेसर को, या फिर उसको कमर्शियलाइज करने के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको भेजिए, वो कंपनीज को भेजिए जो ये पूरा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको प्रेजेंट करिए कि मैं अगर आपके लिए कंटेंट लिखूंगा तो उससे क्या फायदा होगा आपको, राइट। जैसे कि आपको गूगल सर्च में फायदा मिलेगा, कि आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए क्या, ताकि लोग आपको पहचान सके, आप क्या बात करना चाहते हैं, आपकी बात को मैं एक्सप्रेस करूंगा, राइट, अपने वर्ड्स के अंदर। तो हमेशा हमारा फ्लेवर क्या है लिखने का, वो फ्लेवर के हिसाब से आप अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाइए अपना कंटेंट, तो वो सबसे पहले समझेंगे। अगर आप लिख रहे हैं कुछ और आपने कहीं और दिखा दिया, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉपी में के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है और आपने मुझे कोई आईटी का ब्लॉगिंग दे दिया, तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं होगा तुरंत कि भाई मैंने मांगा था क्या, और ये ठीक है आपने लिखा है, दैट्स फाइन। तो सबसे पहले क्या करिए कि धीरे धीरे अपना बेस बनाइए, कि जिस प्रकार से आप अभी जो भी फील्ड में लिख रहे हैं उसी फील्ड के लोगों को आप दिखाइए अपना काम, और उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट फील्ड्स के लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए और उनके लिए लिखना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट सेगमेंट, इंडस्ट्री सेगमेंट में बनाना शुरू करें। तो आपको ये होगा कि एक और से काम आ रहा है, दूसरी ओर से आप सीख रहे हैं, एक ओर से काम आ रहा है, दूसरी ओर से सीख रहे हैं। तो एक दिन जब आएगा कि एक आध साल में 6 महीने में आप जब मैक्सिमम 10 से 12 सेगमेंट कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपको सभी सेगमेंट से काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस लेखनी में स्ट्रगल इतना नहीं है, जैसे कि हम अगर देखने के लिए जाए, जितना हम इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट स्टडीज के बाद जो जॉब ढूंढने में जितना स्ट्रगल करते हैं ना, उससे कम स्ट्रगल इसमें है। मेरी ही मैं बात करूं तो मैं सबसे पहला मेरा सैलरी मुझे लिखने से मिला था, रादर कि मैं इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद प्लेस हूं कहीं पे, या फिर मैं अपने और से ढूंढूं जॉब को, राइट। तो इसमें स्ट्रगल इतना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि बहुत ही क्रिटिकल चीज है। आपके एक वर्ड से क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक का एक वीडियो बना तो क्या पूरी हालत पूरी की पूरी कंपनी की हुई, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि आपके एक वर्ड से किसी को फर्क पड़ सकता है। सो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अपने
जो लिख रहे हैं उसी टाइप के, उसी फील्ड के लोगों को सबसे पहले दिखाना शुरू करें अपना काम और प्रेजेंट करना शुरू करें, और उसको कंटिन्यूअस तौर पे अपने ब्लॉग पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे सभी जगह पे रखना शुरू करें, तो लोग नोटिस करने लगेंगे और आपको धीरे 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 काम मिलना शुरू हो जाएगा। सर, एक यूजर है अंजलि शर्मा ही पूछ रही है कि किस तरह से अपनी फ्रीलांसिंग और कंटेंट मार्केट शुरू करना है, क्या इसमें ग्रामर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही क्लासी और प्रिसाइज होना चाहिए। जी। और वो ये भी पूछ रही है कि कैसे इसको स्टार्ट करें, स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें। राइट, तो सबसे पहले तो क्या करें कि मैम आप पढ़ें। जैसे कुछ मैं अभी वेबसाइट्स बताऊंगा, जैसे कि forbes.com है, राइट, फिर ft.com है, फाइनेंशियल टाइम्स, राइट, फिर आप ब्रांड इक्विटी पढ़ें, फिर आप इकोनॉमिक टाइम्स के ब्लॉग्स पढ़ें, नेक्स्ट आप medium.com पे ब्लॉग्स पढ़ें। ये सभी जगह पे जो भी लिखा जा रहा है वो सब ब्लॉग्स पढ़ें। जैसे कि आप आईटी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इन्फोसिस के ब्लॉग्स पढ़ें, टीसीएस के ब्लॉग्स पढ़ें, राइट, और वो ब्लॉग्स पढ़ें और उसके बाद उसमें से कोई बूमिंग टॉपिक, आप अगर गूगल ने ये भी सुविधा दे रखी है कि गूगल कीवर्ड सर्च में अगर आप सर्च करके अभी का बूमिंग जो भी कीवर्ड चल रहा है, फिर जो भी टॉपिक चल रहा है, उस पे आप सबसे पहले ट्राई करें लिखना कि भाई चलिए इस महीने में सबसे ज्यादा क्या रहा, जैसे कोविड रहा तो कोविड-19 के बाद बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट होगा, बिजनेस को कैसे असर पड़ेगा, या फिर एजुकेशन सिस्टम को क्या असर होगा, राइट। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जिसपे हम सोचें और बाकी सब ने क्या लिखा है वो सबसे पहले पढ़ें, और धीरे 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 इसी प्रकार से जो मोमेंट मार्केटिंग जिसको कहते हैं ना कि आज क्या हुआ, राइट, आज जो भी इंसिडेंट हुआ उससे हम लिखे, उस पे हम लिखे कुछ, राइट, जो भी इंसिडेंट हमको लग रहा है तो उस पे हम अपना काम, अपना बात, अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करें। वो जब हम एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको किसी को अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं साइलेंटली। जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, लोग आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब भी उसको नीड होगी वो सामने से आपके पास आएगा और बोलेगा कि मेरी कंपनी के लिए लिखिए, मेरी फर्म के लिए लिखिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखिए, मेरे एनजीओ के लिए लिखिए, राइट। तो ये हमेशा होता है, और ये जनरली आप जितनी शिद्दत से लिखते हैं उतनी शिद्दत से लोग आपके पास आएंगे और आपको काम भी देंगे। Andarji, I have two quick questions from you. Yes, please. I don't know whether you have covered it or not, maybe. Okay. That you have covered, but I missed it. So I have two small questions from you. One thing is, like, when we write content, are there some specific guidelines, because cyber world is too big? So if we follow some standardized guidelines to write a content, any FMCG product or for my own personal venture, so define some standardized guidelines which we need to keep in mind. And second is, what are the legal aspects which we need to keep in mind, because I know that terrorism and all these things are at the peak at this point in time. Right. Somebody else has already copied it, maybe just by talking informally. So how do you take care of all these things so that you should be getting the first movers benefit in the market? राइट। सो देखिए, दो चीज से हम इसमें दो जो आपने प्रश्न पूछे, तो दूसरा जो प्रश्न था वो था आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, राइट। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी मानी जाती है कंटेंट राइटिंग मींस, राइट। अभी आप जो कॉपीराइट की बात कर रहे हैं उस पे हमारा कोई भी अभी के लिए अधिकार नहीं है। जब भी आप कोई ओपन प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते हैं, इन शॉर्ट कि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री हैं, राइट। अभी वहां से आपका कोई कंटेंट बोरो कर लेता है या फिर वहां से कॉपी करके दूसरे को भेज देता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर अपना कंटेंट को सीज करके रखना है तो आप अपने ब्लॉग में एक चीज ये कर सकते हैं कि जैसे आपने मास्टर क्लास तो सुना ही होगा, जिस मास्टर क्लास अपना कंटेंट के लिए क्या करता है कि वो अपने ही सर्वर पे वो सब चीजें रखते हैं और वहीं पे आपको देखना है, वहीं पे पढ़ना है, उससे सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स इट। वहां पे आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं कि भाई हाँ, उसके लिए मैंने ये मेहनत करी है, इन लोग इसके लिए मैंने ये पैसे खर्च किए हैं, इसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो शूट किया है, या फिर इसके लिए मैंने पूरा थियरिटिकल मैंने लिखा हुआ है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड कुछ काम कर रहे हैं
जब आप किसी से पैसे ले रहे हैं, राइट, वहां पे आप कॉपीराइट का वो रख सकते हैं कि भाई ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि बुक्स है, तो बुक्स आज हम पीडीएफ के स्वरूप में सभी को भेजते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, राइट। तो पीडीएफ अगर भेजते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई यहाँ पे जो राइट्स है वो पूरे के पूरे लेखक के, लेकिन अभी शेयर तो हो गया, अभी उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, और किसने शेयर किया हम पता लगाए उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई हम किसी भी चीज को कहीं से भी ले रहे हैं तो एक्चुअल कर्टसी दें, ये होना चाहिए। जैसे हम लिख भी रहे हैं, हमें किसी का कोट पसंद आया तो हम कर्टसी दे उसको, राइट। ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा आपका क्वेश्चन जो था मैम कि जो उसकी गाइडलाइंस जो रहती है, तो गाइडलाइंस किस प्रकार से होती है जनरली कि आप जब भी कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी वायर फ्रेमिंग बनती है कि भाई हाँ मुझे ये चीज कवर करनी है, फिर वो आप क्लाइंट को दिखाते हैं और वो क्लाइंट अप्रूव करता है, उसके बाद आप वो सब चीज लिखते हैं। अभी वायर फ्रेमिंग किस प्रकार से करनी, हमें किस प्रकार से लिखना है, वो सब चीजें बहुत ही सब्जेक्टिव है, राइट। कि लिखने से पहले मुझे क्या प्रिपरेशन करनी, अभी वो नहीं, आप अभी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अभी आप कर रहे हैं, अभी आपको क्या देखना है कि कंटेंट को कैसे लिखना है, राइट। अभी मैं किसी के लिए लिख रहा हूं तो मुझे उस प्रकार से लिखना है, अगर मैं अपने आप से लिख रहा हूं तो मुझे पूछना है कि मुझे किसको यह कंटेंट दिखना है या फिर कौन मेरा कंज्यूमर है। कुछ मिस अंजलि शर्मा को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो क्या आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं उनके साथ? Am I audible? Yes, you are audible. I think There is some Mr. कंदर का हैंग हो गया है इंटरनेट। Just wait for some minutes. यस सर। सर क्या अपना ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूजर्स को डाउट है एंड वी नो दैट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड यू हैव अनदर कमिटमेंट। सर योर माइक इज म्यूट। ओके, सो मैं पीपीटी का लास्ट स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। जी सर। जी सर। जी। I'll request all the participants to see the email ID which is being shared by the speaker so that you can contact him directly for your doubts. Meanwhile, I will request Dr. Anshu Agarwal to give away vote of thanks because our speaker is running short of time. So, Dr. Anshu, please. Thank you, Kandar, for accepting our request to conduct a session on content writing. Because even we in IT or we being professors, we do PhD, we understand the importance of content too, because we have to go through research and publish lots of papers related to our research. So even the publicity for our papers or you can say the download rate and all this also is dependent upon the topic we choose for our research work. Right. I would like to thank all the participants who have taken out their time, and all my faculty members, students, the people from outside across India who have joined this webinar. I'm really thankful to them, and my special thanks to Kandar for bringing us the importance of content writing. So maybe this will motivate some of us to start writing a blog, because I myself I'm interested in writing, but I'm not taking out so much of time to write the things. But now maybe I could get connected to you and start doing it along. Yes, thank you. डेली आप 45 मिनट रीड करें और 5 मिनट लिखे। Yes, actually I do. I have right. I like to write a very general kind of thing. I've already a blog article, just a blog article, which has got almost more than 2,000 viewers. So I've got comments from them, but they are expecting me to write more articles of that kind, but I don't know. However, I was busy with other tasks, so maybe I'll start it off with again. Sure. Thank you so much, Kandar. Welcome. Thank you all.